Hello students, welcome to the channel Maths Time. Today we are going to take the topic discount of the lesson commission brokerage and discount. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं then please like the videos, don't forget to subscribe the channel and click on bell icon to receive the notifications of further videos. Okay, let's move on to our topic which is discount. Let us see the terminologies present worth, sum due and true discount. Suppose there is a businessman who wants to sell his goods and there is a customer who wants to purchase the goods. Businessman sells goods both on credit as well as debit. Suppose a customer purchases a watch of rupees 100. Now, if customer pays the amount right now, then he will pay 100 rupees. Okay, that 100 rupees we call it as present worth. But the customer is not paying the amount right now. He says that I will pay this amount after some time. Let us suppose 4 months. Then businessman says, okay, you pay the amount after 4 months, but after 4 months you pay the amount rupees 104. How the amount rupees 104 came? That 104 rupees we call it as sum due. 104 कैसे आई? 100 रुपीज़ पे 12% उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया एनुअली. Then after 4 months the amount become 104 rupees and the rupees 4 we call it as true discount. So let us see the formulas. Formulas are present worth plus true discount is nothing but sum due. Now if the customer is paying 100 rupees right now and after 4 months he is paying 104 rupees, the amount is same. Okay, the value of 100 rupees right now and after 4 months the value of 100 rupees will become 104 rupees. The 4 rupees addition is nothing but the true discount. So our formula is present worth plus true discount is nothing but sum due. And true discount is nothing but a simple interest. And simple interest का ही formula use किया है. True discount is equals to present worth into N into R. N is your time period in years and R is rate of interest annually. Okay. Now let us see bills of exchange. Bills of exchange. First of all हम देखेंगे कि bills of exchange क्या होता है. Again there is a seller who wants to sell the goods and there is a buyer who wants to purchase the goods. सेलर को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं और बायर को हम डेटर भी बोलते हैं. अच्छा, बायर परचेज कर रहा है गुड्स बट he says that I will pay the amount after some time, maybe after some months or after some years. तो सेलर को गारंटी होनी चाहिए कि बायर मुझे पैसे लौटाएगा कुछ समय बाद. तो फिर सेलर क्या करता है कि एक ड्राफ्ट बनाता है या तो एक बिल बनाता है या तो उसको हम एक एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है, सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है. तो सेलर वो एग्रीमेंट बना रहा है इसलिए हम उसको ड्रॉअर बोलते हैं. ध्यान में रखिए, सेलर जो है जो एग्रीमेंट बना रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर और जिसके नाम पे वो एग्रीमेंट बन रहा है उसको हम बोलेंगे ड्रॉई. ओके, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा उसको हम ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, बिल भी बोल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमको ध्यान रखने की बात क्या है, जो एग्रीमेंट बना रहा है ही इज़ ड्रॉअर एंड जिसके नाम पे वो एग्रीमेंट बन रहा है ही इज़ ड्रॉई. ड्रॉई वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा, एक साइन दे के वो एग्रीमेंट पे वो एग्रीमेंट को क्या करेगा कि एक्सेप्ट करेगा. नाउ लेट अस सी अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ बिल. जैसे कि ये बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सैम्पल है, ऐसा बिल बनता है. जो लेफ्ट कॉर्नर में है, लेट अस सी सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बिल.
जो लेफ्ट कॉर्नर पे है दैट इज़ द अमाउंट. अमाउंट मीन्स कितने अमाउंट का वो बिल बना है, दैट इज़ योर अमाउंट. और उसको बोलेंगे हम फेस वैल्यू ऑफ बिल. नाउ ऑन द राइट कॉर्नर आपको प्लेस कॉमा डेट दिख रहा होगा. जो डेट है, जो डेट लिखा रहता है वहाँ पे, दैट इज़ नथिंग बट डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल मतलब क्या, जिस डेट पे वो बिल बना है दैट इज़ डेट ऑफ बिल. लेट अस सपोज कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि डेट ऑफ बिल है 1/8/2020. अच्छा, वो बिल पे क्या लिखा है हम देखते हैं. 60 days after the date Mr. ABC a sum of 2 lakh for value received. मतलब 60 days आफ्टर ड्रॉअर क्या करेगा, वो बिल पे करेगा, ऐसा ये बिल में लिखा है. तो आफ्टर 60 days डेट ऑफ बिल से अगर हम 60 days बाद की डेट निकालते हैं तो वो डेट आती है हमारी 1/10/2020. तो इस डेट को बोलेंगे हम नॉमिनल ड्यू डेट. मीन्स ड्रॉअर क्या करेगा कि 1/10/2020 तक वो 2 लाख रुपीज़ ड्रॉई को पे करेगा. ठीक है. अगर सपोज ड्यू टू सम रीजंस ड्रॉअर वो नॉमिनल ड्यू डेट पे ड्रॉई को अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, देन देर इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेस, 3 days of grace given to drawer to pay the bill, and that due date is called as legal due date. Means 1/10/2020 के बाद 3 दिन ऐड करेंगे तो फिर वो कब तक पे कर सकता है, 4/10/2020 तक, एंड दैट डेट वी कॉल इट एज लीगल ड्यू डेट. ठीक है. तो अभी हमने कौन से टर्म्स देखे हैं बिल के, फेस वैल्यू, डेट ऑफ बिल, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिस्काउंटिंग अ बिल. अभी ये बिल को डिस्काउंट कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं डिस्काउंट. देखो, ड्रॉअर और क्रेडिटर एंड ड्रॉई और डेटर. ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में एक बिल बनता है. ड्रॉअर ड्रॉज द बिल, ड्रॉअर ड्रॉज द बिल एंड ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल बाय साइनिंग इट. अभी ये बिल ड्रॉअर के पास रहता है, वो एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ है, तो वो ड्रॉअर अपने पास रखेगा कि ड्रॉई ने वो साइन किया है कि कुछ टाइम बाद वो उसको पैसे लौटाएगा. लेकिन अगर ड्रॉअर को नॉमिनल ड्यू डेट या लीगल ड्यू डेट के पहले ही पैसे चाहिए, देन व्हाट ही डज, ही अप्रोचेस द बैंक. वो बिल वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है. तो फिर वो बैंक के पास जाता है और एंड ही डिस्काउंट्स द बिल. तो फिर वो बैंक क्या करता है, बैंक वो बिल देखता है एंड जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, एंड द चार्जेस डिडक्टेड इज़ नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट. द अमाउंट डिडक्टेड इज़ बैंकर्स डिस्काउंट. और फिर कुछ चार्जेस डिडक्ट करने के बाद बची हुई अमाउंट वो क्या करता है, ड्रॉअर को दे देता है. तो वो बची हुई अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू, राइट. द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस गिवन टू ड्रॉअर इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू. अभी वो ड्रॉअर को पैसे मिल गए और फिर क्या करता है बैंक, आफ्टर द मैच्योरिटी, मतलब ऑन नॉमिनल ड्यू डेट, वो बिल बैंक ड्रॉई को प्रेजेंट करता है और ड्रॉई क्या करता है, पेज द अमाउंट टू द बैंक. ड्रॉई क्या करेगा, पेज द अमाउंट टू बैंक. तो फिर ये क्या हो गई, प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग अ बिल. बिल क्यों डिस्काउंट किया, बिल किसने डिस्काउंट किया, ड्रॉअर ने. क्यों डिस्काउंट किया, क्योंकि उसको बिफोर मैच्योरिटी डेट पैसे चाहिए थे, इसलिए ही गोज टू द बैंक फॉर डिस्काउंटिंग द बिल. अगर उसको पहले मैच्योरिटी डेट के पहले पैसे नहीं चाहिए, देन ही विल कीप द बिल विथ हिमसेल्फ एंड ड्रॉई विल रिटर्न द अमाउंट टू ड्रॉअर बिफोर ऑन और बिफोर ड्यू डेट. ठीक है. सो दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज डिस्काउंटिंग अ बिल. अभी इसके ऊपर फॉर्मूलेज है वो देखेंगे हम. अभी बैंकर्स डिस्काउंट हमने देखा. व्हाट इज़ बैंकर्स डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपके पास, सम ड्यू
into n into r upon 100. Bankers discount is nothing but simple interest only, simple interest on sum due. Sum due into n into r upon 100. And next is bankers gain. Bankers gain is bankers discount minus true discount. It is difference between bankers discount and true discount. देखो बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा बड़ा रहता है ट्रू डिस्काउंट से. क्यों? बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे है एंड ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे है. बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है आपका बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट विच कम्स एज ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ठीक है. फिर आपका बैंकर्स गेन का हाँ फॉर्मूला हमने देखा. नेक्स्ट इज कैश वैल्यू. कैश वैल्यू क्या होता है? बैंकर्स सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. जो भी बैंकर्स ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं वो माइनस कर दिए सम ड्यू से, तो फिर हमको क्या मिलती है? कैश वैल्यू. ठीक है. सो दीज 3 आर द फॉर्मूलेज फॉर बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन एंड कैश वैल्यू. और हमने सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूलेज फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी देखे हैं. Okay, so we will end our video here and we will see examples on this formulae in the next video. Okay, till then bye. See you in the next video. Thank you.